And I welcome you all on behalf of Association of Muslim Professionals for online career guidance seminar. As you all know, that the main aim of these sessions is to help students choose a field that is in tune with their skills and their job expectations. With the help of such career guidance seminars, most students end up choosing the right career and perform their level best, which ultimately helps them succeed. So AMP keeps organizing such sessions for the benefit of everyone. So we request you to keep joining these sessions and benefit from it. So as we all now are going to start the session, I would start the session with a short kirat, and then I would request Fuzail Bhai to do a short AMP introduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Thank you. Fuzail Bhai, I request you to please do a short AMP introduction and introduce the speaker. Thank you. Thank you, Shazad Bhai. Very good afternoon to everybody. Please give me a minute while I share my screen with you. Yeah, very good afternoon and welcome to the AMP Online Career Guidance Seminar. Um, to tell you a bit about the online career guidance seminar, we at the Association of Muslim Professionals have been working with the underprivileged and providing them support for over 12, 15 years now. And we are actually providing them a lot of support in terms of education and career guidance and all of that. So our initiative career guidance seminar is in line with that. We started off in 2007. About AMP Association of Muslim Professionals is a registered non-profit organization. We operate in India, in the USA, in the UK, as well as Australia. We also have other countries that we are entering. We have completed 12 years in serving our community in the field of education, the field of employment, and in the field of empowerment. We have a vision to impact close to 10 million people by 2030, and we already on our way there. Our main mission is to empower the underprivileged for the greater benefit of the society and in general the nation as well. Our vision is that we have an advancement in education. We need to be socially progressive, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. We want to build a community with all of this in it. In terms of our achievements, we have our primary and core activity, which is called the school development programs, where we actually hold lectures and we connected with schools and we do a lot of work along with schools and colleges and universities. So we've held more than 2,750 skill development lectures till date. We've connected with 800 plus schools. We've benefited close to 2,75,000 students from the initiative, and we've done trainings for teachers and parents, where teachers training and parenting workshops have taken place for over 100 plus. That is the first and core division, and second division is the employment assistance cell. So not only education, we also help people in getting their jobs. So um, so we have a internal consultancy where we run job fairs and job drives, and we also tie up with a lot of other consultancies. We've employed more than 20,000 plus candidates over the last years that we've been in operation. We've done 200 plus employability trainings, and 15,000 plus degree students have benefited out of the employment assistance cell. We also have the scholarship and self-employment initiative, where we have 800 plus higher education scholarships that we've given for deserving students. We also educate orphans who otherwise would not have education. We've benefited more than 750 plus. We also work very closely with families, and we transform them by offering them self-employment assistance, and we work closely and benefited close to 200 plus 50 plus families. So this is under the scholarships and self-employment division of ours. So while we do all of this, we create a very large resource center where we are tied up with career counselors, and we create a lot of documentation and a knowledge bank that gets created.
So we have about 600 plus career counselors that we work with on a real-time basis continuously to benefit the students. We've counseled more than 2,000 plus students who otherwise would, not be very sure about what the education or career would have been. We have 50 plus documents on career guidance that is already prepared and ready. We have 1,000 plus career cards distribution because we believe that the earlier somebody starts the education, the better. So 12 standard, 11 standard students के लिए we have a career chart जिसमें we talk about स्टार्टिंग से लेके करियर कैसे बनाना है कौन सा फील्ड चूज करने पे कौन से कोर्सेज करने के बाद कौन सा करियर में क्या जॉब्स मिलके आप किधर जा सकते हैं लाइफ में सो दैट दिस द करियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट and we also have a lot of awards and partnership that we won. We have 280 plus renowned educationalists that we connect with on a regular basis, and we are partners with 30 plus skill partners that we tied up with for these job fairs. And we also are connected with the state governments. We work very closely with the state governments in terms of providing the necessary infrastructure, educational infrastructure to educational knowledge infrastructure to the state government very closely. So 50 plus partner NGOs that we work in the same fields that we operate in. And all of these NGOs, we work together with them on the field and we benefit students and people who are looking for jobs. So that's a short introduction about AMP. And to tell you a little bit more about our reach, we have an on-ground presence of about 100 plus active chapters across different cities. Each of these chapters have their own executive bodies and the presidents and secretaries and all of that. And we are spread across 25 states and we have a presence in 16 countries and we have 6,000 plus active members that we are working with from AMP on a regular basis. We also have an online presence of 1,25,000 plus members and professionals who we are connected through the internet. So that was a very quick introduction of AMP. AMP to join AMP, you please visit ampindia.org/join AMP. To know more about AMP and all the initiatives and projects that we facilitate, we have ampindia.org. If you would like to talk to us, please feel free to call the number. Please visit our website. Please, send us an email. You can also follow us on social media, and that's the office address, our registered office address. So with that, I'd like to now quickly introduce the speaker for the day. Now, our speaker for the day is a doctor. He's a very famous doctor. He's got a lot of experience in various educational fields. So his name is Dr. Mohammad Sufyan Badr. He is a PhD and he's currently serving as a teaching faculty in the Department of Bioengineering at the University of California, Riverside in USA. He's also an analytics architect in CenturyLink. He has been an analytics architect in CenturyLink for more than a year in Denver, USA. He possesses an excellent academic record as well, having graduated with a MS degree in molecular science and nanotechnology and a PhD in engineering from Louisiana Tech University, Houston, USA, respectively. Now, before joining the PhD program at Louisiana Tech University, he graduated with MSc in Bioinformatics from Jamia Millia Islamia University, New Delhi, India. He also served as a lecturer and head of the Department of Bioinformatics and Biotechnology in different universities in India. Dr. Sufyan has over 14 years of teaching, research, and industry experience. Sir has published research in conferences and highly reputed international journals. Sir has also authored a chapter in a book about machine learning and molecular modeling. Currently, Sir is authoring a book with the name of Beginning Machine Learning, which is due to be published by A.Press Springer USA. He has developed an algorithm for face detection, recognition, and emotion recognition. Sir has also developed a device that, by using a biosensor, can correlate the physiology of the human body with the emotion recognition algorithm, giving us an accurate measurement of the amount of stress hormones in the body. So the device is a low cost, easy to use, and easily repairable, and can be used on a large scale basis. And it can also be linked with various
devices of the user and the family and doctor parents. So welcome, Dr. Sufyan. So I would like, so as you're aware, the topic for the day is pharmacy, paramedical, and hospital management. So no one better than sir to take the session forward. So I request you to please proceed, sir. Thank you. Assalamu alaikum. This topic already everybody knows that career counseling in pharmacy, paramedical sciences, and hospital management. So if you see since last 5 years, especially after 14, 15, everywhere, not in India, and in US, job scarcity, especially who are already graduating in any field in engineering, they don't have very much good options for job. So if you see the engineers in terms of job aspect, and you will be surprised to know that so many engineers, they wanted to do 1 year, 2 years diploma or advanced diploma course in paramedical or pharmacy only to get a job. So this is very good. I'm very thankful to AMP to organizing this type of lecture. Well, this is urgent to know the job aspect, the degree, the job, and after 5 years, after 10 years, what will be the job market of particular field in which you are doing. So this type of lecture basically giving some sort of knowledge, some kind of understanding that my career, whatever I have chosen, is right or not, and what is the aspect of after 5 or 10 years. So मैं समझता हूँ कि इस तरह के लेक्चर से स्टूडेंट को और गार्जियंस को काफ़ी फ़ायदे होंगे. उनको पहले से एक वो रहेगा कि हाँ, जो मैंने चूज़ किया है उसके क्या, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और मार्केट की एबिलिटी क्या है जॉब की. तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो डेडिकेशन आते हैं या जो अंदर से वो आती है कि माय चॉइस वाज राइट, आई एम डूइंग राइट थिंग. सो इस सब से बेसिकली क्या होता है कि आपके अंदर एक वो आती है, मोटिवेशन आती है, वो विच इज रिक्वायर्ड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, विच इज रिक्वायर्ड. समटाइम यू डिडंट सी, you are going office, you are coming back, but if you are very much motivated, and when you are doing any job, any responsibility of your job, then it affects. If you are very much motivated, if you are very excited, then it affects on your whatever you are doing. You didn't realize, but somebody will realize that yeah, alhamdulillah, he is very much motivated. So आप उस सबको देखने के बाद मुझे लगता है कि पहले मैं थोड़ा सा कैरियर गाइडेंस की तरफ आता हूँ कि जब आप 10th या 12th में होते हैं तो आपकी ख्वाहिश, बच्चों की ख्वाहिश से उससे ज़्यादा अहम है कि बच्चों का असेसमेंट होना, कि उसका इंटरेस्ट क्या है बच्चों का. सब लोग सुन रहे हैं ना? कैन यू हियर मी एवरीबॉडी? हेलो? Yes, doctor, we can hear you. Yeah. सो मतलब इमोशन से तो कुछ होता नहीं है ना. तो जब 10th या 12th में बच्चे होते हैं, और गार्जियंस के लिए और बच्चों के लिए जानना कि आपका बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में उसकी इफिशिएंसी क्या है, इन डेप्थ नॉलेज क्या है उस बच्चे की, वो जो एरिया है, वो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें कितना पैशन है उस बच्चे को, स्टूडेंट को. और तब ये सारी चीज को आप जब किसी प्रोफेशनल से बात करेंगे, जैसे एएमपी है, एएमपी में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बात करेंगे, तो सारी चीज का एक स्कोर देंगे. वो उस स्कोर के बेसिस पे फिर आप चूज करें. मसलन कोई स्टूडेंट है, मैं अभी देखता हूँ नीट 10-12 लाख स्टूडेंट देते हैं, और 1-2 लाख तो चलेगा, सही है, लेकिन जो लास्ट 2-3 लाख होते हैं, यानी जिसका रैंक 9 लाख से 10 लाख से 11 लाख, तो वो लोग 2-3 साल अपना वेस्ट भी करते हैं, पैसे भी, टाइम भी, और फिर उनको कामयाबी नहीं मिलती है. तो होता क्या है, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि आपने अपनी इफिशिएंसी को, आपने अपनी एनर्जी को यूज कर लिया 2 साल, तो वो इफिशिएंसी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी जो बाद में जो आपको जरूरत होती है उसमें वो कमी होती है. वो आपको नहीं रियलाइज होता है, लेकिन वो होती है. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं अभी एक इरफान खान का, वो जो अपने जो क्रिकेटर हैं वहाँ के गुजरात के, इरफान पठान ना, उसका मैं देख रहा था
तो उसने लिखा कि मैं जो जब 28-29 में जब मैं प्रैक्टिस करता था तो उतना मुझे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, मैं अपने एनर्जी को काफी वहां लूज किया, इसकी वजह से मेरा जो कैरियर स्पैन है वो कम हो गया। तो अब देखिए कितना ये होता है, आप फिजिकल हो या मेंटल हो, मेंटल के भी यही सिचुएशन है। आप जब 2-3 साल स्टूडेंट कहीं और लगा देते हैं, तब वो फिर जब नीट नहीं होता है तब फिर कोई कोर्स करते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, नहीं वो जो आपने 2-3 साल कहीं गंवा दिया है, तो डेफिनेटली यू आर द लूजर फॉर दिस 2-3 इयर्स। तो उस वक्त को बचाने के लिए, उस इफिशिएंसी को बचाने के लिए जो एएमपी है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस सेंटर है, उसके पास जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे आप मिलें और फिर आप डिसाइड करें। तब फिर उससे क्या होता है, कम वक्त में आपकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। ये जो कोचिंग क्या होती है, बेसिकली आपके इफिशिएंसी को वो एक्सपेडाइट करता है बहुत कम वक्त में। उन लोगों प्रोफेशनल वो होते हैं, उनको पता होता है कैसे करना है। उसी तरह ये कैरियर जो गाइडेंस सेंटर है वो आपकी इफिशिएंसी, आप बेस्ड ऑन ऑल 2 or 3 थिंग आई टोल्ड यू, देन आप राइट चॉइस कीजिए कि हाँ मेरे बच्चे के लिए क्या सही फील्ड है। वो इतनी तीनों चारों चीज देख करके उसके बाद जब आप आते हैं 12th, तो एक तो नॉर्मल मैं देखता हूँ इंडियन स्टूडेंट में और गार्जियन में भी कि हम लोग प्रोएक्टिव नहीं होते। प्रोएक्टिव का मतलब है कि अभी मैंने नीट में मैं दिल्ली में अभी हूँ और मैंने कुछ टीचर से बात की कि 11th 12th का जो सिलेबस है उसे मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, वो उसके बावजूद वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं या कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो पता चला मुझे कि कुछ बच्चे 8th से ही शुरू कर देते हैं नीट की तैयारी। अब समझे 8th 9th 10th और तब फिर 11th 12th। तो होता क्या है कि ये 2 साल का जो कोर्स है उसको 2 साल में सिर्फ बच्चा चाहेगा तो नीट में शायद गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, अनलेस वो बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। तो उसकी तैयारी वो जो बच्चे या गार्जियन वो 8th से शुरू कर देता है। उस तरह के बहुत सारे कोचिंग कोटा वगैरह में है जो आपको 8th से ले। तो होता क्या है कि जब 10th में बच्चा आपका होता है तो उस वक्त वो 10th का बोर्ड देना होता है, लेकिन वो 11th 12th के भी बहुत सारे कोर्सेज जो है सिलेबस को ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं। समझिए कितनी बड़ी बात, क्योंकि जब 2 साल में पूरी तरह से मेहनत करने के बाद भी वो उसके मुकाबले में जिसने 8वें से शुरू किया और 8वां से करने के बाद उसने 9th में 10th पूरा कर लिया और 10th में उसने 11th 12th शुरू कर दिया, तो उसके मुकाबले में आप कितने पीछे हो जाते हैं। तो ये है प्रोएक्टिव। तो इसमें स्टूडेंट को भी गार्जियन को भी हमेशा आपको 2-3 प्लान लेके चलना होगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए फेल्स, then where I have to do, which college I should choose for my daughter or son। जनरली हम लोग जो यहाँ देखता हूँ मैं कि जब नीट में नहीं हो पाता है तो 6 महीना 1-8 साल लग जाता है चूज करने में कि अब मुझे क्या करना है। ये जो 1 साल या 6 महीना का पीरियड है वो बेसिकली आपकी खामोशी या आप कांस्टेंट ऐसा नहीं, बल्कि आप स्टूडेंट जो है आपको पता नहीं चलता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं वो कि I did a lot of, I did the coaching, I already did my full effort, but even though I didn't get success, I didn't get seat in NEET, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के इसमें मोड में चले जाते हैं जो आपकी इफिशिएंसी को, स्टूडेंट की इफिशिएंसी को बहुत कम कर देता है। तो वो नौबत नहीं आएगी अगर हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखें। प्लान ए फेल हुआ, प्लान बी में चलेगा। उसके लिए गार्जियंस को भी ज़हनी तौर पे भी बच्चों को आपको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा कि लाइफ में कोई एक चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ख़ास चीज़ रखी है। हो सकता है नीट आपने दिया नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, या आप लोगों को देखें तो आपको पता चलेगा। तो ये उसके लिए है कि आप प्लान ए, प्लान बी, सी हो, ताकि प्लान ए फेल हो प्लान बी में आ जाए, प्लान बी फेल हो प्लान सी में आ जाए, बगैर वक्त के ज़ाय किए हुए। उसमें अब आप देखें जब आप 10th 12th कर चुके होते हैं तब आपके पास प्लानिंग ऑलरेडी होती है। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो यकीनन नीट दें, मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएं यकीनन, है ना। उसके जब लगता है कि नहीं उस पोजीशन में नहीं है हमारे बच्चे, तो फिर बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में भी, आप पहले 10-15-20 साल पहले ये चीज़ नहीं थे, अब यहाँ भी बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे कोर्स होते हैं। तो उस तरह के बच्चे जो किसी वजह से नीट या इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, वो अगर इसमें वक्त पे अगर शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, इवन बेटर देन इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर्स।
because the right time he choose the right subject, the right course. उसमें अब आप जो पैरामेडिकल या फार्मेसी में ये है, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, इसमें मुझे 2-3 चीज और कहनी है, तब फिर मैं स्लाइड पे आऊंगा कि डिप्लोमा जो वर्ड है ना, डिप्लोमा, वो जनरली इंडिया में 12th के बाद अगर डिप्लोमा वर्ड यूज करते हैं तो बेसिकली some kind of lethal, because after that you are not able to join any regular program, for example BSc or MSc. तो मेरी शिद्दत से वो होगी, इल्तिजा होगी, गुजारिश होगी कि डिप्लोमा प्रोग्राम जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो 1 या 2 साल का आप बैचलर्स के बाद करें, क्योंकि बैचलर्स डिग्री होती है, उसके बाद जब 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा करते हैं तो some kind of you get age, because of that age very easily you get a job, है ना। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और वो 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो पैरामेडिकल के अंदर आता है, अगर उसका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंप्यूटर साइंस है और वो 1 साल का ये कोर्स करता है, तो आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, यूएस वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेपरेट होता है, जिसमें सारे मशीनरीज हैंडल होते हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है। तो इसमें उस बंदे की जबरदस्त उसकी सैलरी भी, उसका जॉब प्रोफाइल भी, क्योंकि ऑलरेडी इंजीनियर है वो, और 1 साल का उसने डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी किया है, तो उसको पैरामेडिकल का भी अंदाजा हो गया, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। और आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर का रोल बहुत कम होता है, सारा रोल मशीन का होता है, टेक्नोलॉजी का रोल होता है। तो आप जब ऐसे रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी करते हैं तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है, आपका पैरामेडिकल बैकग्राउंड भी है, तो आप मशीन के साथ साथ उसकी जो रीडिंग है उसको भी आप बाकायदे, डॉक्टर जब नोटिस या लिखता है या प्रिंट जो उसकी रिपोर्ट आती है, तो इवन दे आस्क फ्रॉम रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी whether everything is okay, because he is watching the technology, the machine part as well as the reading part also, because he has background of paramedical. तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है, मैं मेरी ये मतलब जो इस जो लेक्चर में आने के पहले अपने आप को तैयार कर रहा था कि वो, हाँ, फिर अगर मतलब बेहतर है या ऑप्टिमम है जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं उसके लिए 1 साल या 2 साल का। हाँ, अगर अब आप जो हमारे जो आबादी है हमारी मुसलमानों की, उसमें मतलब जॉब होना या अपने आप को स्टेबल करना या फैमिली को स्टेबल करना, स्पेशली जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो जिनके वालिदैन लेबर हैं, तो वो चाहते हैं खुद क्विक जो है वो जॉब में आ जाए, कम से कम मिनिमम वो अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकें या उनकी जो मिनिमम जरूरियात है वो पूरी कर सकें। तो उसके लिए फिर मेरा मशवरा ये होगा कि आप जो पैरामेडिकल के 1 या 2 साल के जो कोर्स हैं उसको एडिशनल करें। आप जैसे आप इंजीनियर ऑलरेडी हैं, यू आर डूइंग बीएससी प्रोग्राम, पार्ट टाइम जस्ट टू ज्वाइन एज ए 1 ईयर in MLT, medical lab technology और एक्सरे टेक्नोलॉजी और डायलिसिस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि 1 साल का भी अगर आप कोर्स करते हैं तो आप देखें, अभी कोरोना ने और इसको एक्सपोज किया है कि आप कहीं पे भी किसी भी छोटी लैब में एज ए जॉब भी शुरू कर सकते हैं, एज ए अपना भी आप कुछ प्राइवेट, जैसे मैं देखता हूँ कि दिल्ली में आप किसी के यहाँ जाके ब्लड सैंपल लेते हैं तो मिनिमम आपको 100 रुपये मिलते हैं। अगर आपने अपने मोहल्ले में 4-5 कलेक्ट कर लिया आपको तो 400-500 रुपये आ जाते हैं आपको। दैट इज सफिशिएंट फॉर मंथली एक्सपेंस एटलीस्ट, इवन फॉर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स, इवन फीस आल्सो यू कैन मैनेज इट बाय डूइंग दिस वन। तो ये है कि अगर किसी को की फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन ये है, उसके लिए मेरी ख्वाहिश है कि आप इस तरह के कोर्स एडिशनल करें, और रेगुलर आप बीएससी प्रोग्राम अगर कुछ नहीं होता है तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जैसे इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, उससे आप बैचलर्स प्रोग्राम करें, इससे 1 साल 2 साल करें। हाँ, अगर आप वेल एवरेज इसमें है तो आप बैचलर्स प्रोग्राम जो पैरामेडिकल में है उसमें आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, वो है। जैसे आप बीएससी इन एमएलटी, बीएससी इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये जो बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, उसी तरह फार्मेसी में है, उसी तरह हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मेसी और पैरामेडिकल में मेरा पर्सनल जो वो है, काफ़ी मैंने स्टडी किया है इस पर, क्योंकि मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी मैंने पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी शुरू किया है। तो जो फार्मेसी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही है। मतलब
मतलब आप 1 साल या 2 साल का आप हॉस्पिटल या फार्मेसी की जॉब करके आप कभी भी आप व्हाइट कॉलर की जॉब नहीं ले पाएंगे। आप कभी भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं होगी, कभी भी। आप वही जो मिनिमम जो इसकी शुरुआत होगी वही होगी, सैलरी आप इधर से उधर होगी नहीं, जॉब प्रोफाइल आपका वही होगा। इन दोनों के लिए तो मस्ट है कि आपको ग्रेजुएशन करना होगा, तब जाके आप, और बहुत सारे गवर्नमेंट के भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट भी हैं। हाँ, लेकिन पैरामेडिकल में मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, तो उसमें यह है कि आप 1 साल या 2 साल का करते हैं और आपको इरादा है कि हमको बीएससी भी करना है, तो आप डायरेक्ट ऐसा सिस्टम उसमें बनाया गया है कि अगर आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया और उसके बाद फिर आपकी ख्वाहिश होती है कि बीएससी करने की, तो डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर बीएससी में चले जाते हैं। तो इसमें पैसा, आपका वक्त का नुकसान नहीं होता है, और डिप्लोमा से जो कैरियर रुक जाता है, ब्रेक वो नहीं हो पाता है। आप होते हुए, अगर आपकी एवरीथिंग गोज वेल, देन यू स्टार्टेड योर बीएससी प्रोग्राम, कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वन। लेकिन फार्मेसी और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें मस्ट है कि आप ग्रेजुएशन करें और तब फिर आप 1 या 2 साल करें। यकीनन ये सब कोर्सेज, फार्मेसी के भी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के भी, यकीनन बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। हॉस्पिटल वगैरह के तो आपको यकीन नहीं होगा कि बड़े बड़े जो यूएस में है, अभी मैंने यहाँ दिल्ली में जो अलशिफा है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, उसमें एक साहब से मैं मिला जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में वो हैं, और उनका काम होता है पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करना प्रोफेशनली। मतलब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब प्रोफेशनल वर्ड आता है तो उससे होता है कि आपकी इफिशिएंसी को, आपके वक्त को, आपके रिसोर्सेज को बहुत बेहतर तरीके से हॉस्पिटल इस्तेमाल करता है वो, है ना। कब आपको 4 घंटे का स्लॉट दिया जाए, कब आपको 8 घंटे का स्लॉट दिया जाए, उस हिसाब से नंबर ऑफ पेशेंट के हिसाब से, उस हिसाब से सैलरी, ये वो सब मैनेजमेंट के लोग करते हैं। तो ये जो फार्मेसी है और ये जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यकीनन बहुत बेहतर कोर्सेज हैं, यकीनन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, लेकिन बीएससी के बाद। अब पैरामेडिकल में यह है कि अगर आप किसी वजह से आपने 1 साल या 2 साल का शुरू कर दिया, तो उसके बाद भी आप बीएससी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो यकीनन जॉब ओरिएंटेड है, इफ यू कंपेयर विद इंजीनियर्स, इफ यू कंपेयर विद अदर कोर्सेज, नो डाउट, undoubtedly they are the job oriented। और द जॉब ओरिएंटेड में भी इसमें देखिए तीनों जॉब है, आपकी प्राइवेट में भी जॉब है, आपकी गवर्नमेंट में भी जॉब है। बड़े पैमाने पर दिल्ली गवर्नमेंट भी 1 या 2 साल के कोर्स के हिसाब से बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मैं देख रहा हूँ, पिछले 6 महीने 1 साल से मैं देख रहा हूँ। और अभी कोरोना ने इसको और एक्सपोज कर दिया है। तो ये प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है। सेल्फ, जैसे जो जो पैथोलॉजी लैब है, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अभी भी आप जाएं तो बड़े शहरों में छोड़ दें, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं और थोड़ा सा आप सब डिवीजन लेवल पे जाएं, तो अभी भी आप जब लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो वो जो बंदा जानता वो है, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, तो उसके मुकाबले में यकीनन आप बहुत एफिशिएंट होंगे, क्योंकि आपके पास 1 या 2 साल की डिग्री होगी। और मिनिमम 15, 20, 25 हजार जो है वो बहुत बड़ा मसला नहीं होगा आपके लिए। आपकी तो आपकी एक कैरियर शुरू हो गई, आपका एक कैरियर शुरू हो गया, और फिर आपका जो एकेडमिक प्रोफाइल है, आपका इंटरेस्ट है, तो वो भी आप जो डिप्लोमा के साथ साथ अगर उसको कनेक्ट कर दें बैचलर्स प्रोग्राम से, तो आपका वो चीज़ भी रुकता नहीं है। और आजकल जो है ना, वो आप इंडिया में भी और यूएस में भी, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में भी पैरामेडिकल के ऐसे ऐसे कोर्स हैं जो आपको ट्यूशन फी वेव होगा, और उसके बाद आप जाएं और मंथली एक्सपेंस जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं आप गुजारा कर लेते हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ जो यहाँ किसी वजह से नीट नहीं कर सके, और आखिरी ऑप्शंस के साथ वो यूएस जाते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, उनकी इफिशिएंसी है, वो नीट नहीं कर पाए हैं। तो वो लोग, लेकिन जो जा रहे हैं, जो गए हुए हैं, उन लोग काफी अपना उन्होंने वक्त बर्बाद किया, मैंने देखा। तो ये जो कैरियर जो गाइडेंस सेंटर है, इससे ये फायदा होगा कि आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, आप अपने हिसाब से कोर्स चूज करेंगे, और फिर आपका कैरियर पैथ जो है आपके हिसाब से वो बढ़ता चला जाएगा। ये चलो, आप फिर मैं स्लाइड पे आता हूँ। अब देखें आप पैरामेडिकल कोर्सेज के, अब जैसे एम्स है, एम्स में हर आदमी, इंडिया में हर आदमी एम्स की बात करता है, और बहुत सारे जो +2 साइंस से करते हैं उसमें 30-40% एम्स का एग्जाम भी देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि एम्स में भी जो है पैरामेडिकल कोर्स है। जो आप देखिए इसका नाम क्या है, बैचलर्स इन, आई थिंक रेडिएशन टेक्नोलॉजी है,
शायद उसका एक जानने वाले मेरे हैं, वो कर रहे हैं उसमें। तो वो जो स्टूडेंट एम्स के होंगे वो यकीनन बहुत अच्छा करेंगे, वो उनको मास्टर का भी बहुत अच्छा ऑफर यूएस वाला से मिलेगा और पीएचडी का भी ऑफर मिलेगा, यहाँ भी बहुत अच्छी चीज होगी। तो खैर एम्स तो बहुत बड़ा, आप जो इस बीएससी के किसी भी प्रोग्राम में आप चले जाएं, किसी भी प्रोग्राम में, तो अभी भी जो आप देखें इंडिया में हो या पूरी दुनिया में, आपको ताज्जुब होगा कि मेडिकल फील्ड ऐसा है जिसमें 0% अनएम्प्लॉयमेंट है। अब देखें ना, यहाँ एक आप इंडिया जैसे मुल्क में आपको प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी, सेल्फ भी ऐसा है, ऐसा नहीं है आपको, लेकिन इसमें है, इसमें पैरामेडिकल में है। फार्मेसी में अगर आप एवरेज कॉलेज से भी आप अंडरग्रेड करते हैं फार्मेसी का, तो मैंने देखा है कि आपको, और उसमें अगर जरा सा और अगर आप आगे बढ़ जाएं, आप मास्टर डिग्री कर लें, मास्टर इन फार्मेसी, तो आप एक भी शायद स्टूडेंट ना मिले जो ऐसे हो जिसको जॉब नहीं हो, एक भी। मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, तो कितनी बड़ी बात है। और आप एमटेक देख लें इंजीनियरिंग में, तो आपको आई डोंट नो, मे बी इन थाउजेंड्स, नो, they are doing job but they are not satisfied, they are not getting right kind of job। हाँ, तो आप देखिए पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज आप देख लें, और हर शहर में, हर बड़े शहरों में है कहीं ना कहीं। आपको उसके जो नीट के, आप बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट में आपको नीट के इससे मिलेंगे, बहुत सारे आपको डायरेक्ट एडमिशन भी होंगे। तो ये सब कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। आप उस पर डिपेंड करते हैं कि आप उसको स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट कैसा लेते हैं, आप कैसा उसमें परफॉर्म करते हैं, कैसा आपका डेडिकेशन है उस कोर्स के लिए। डेडिकेशन पे मैं 2-3 मिनट लेना चाह रहा हूँ कि आजकल के दौर में डेडिकेशन का होना मस्ट है। डेडिकेशन का डिफिनेशन क्या है, कैसे आप गार्जियन कैसे समझे और स्टूडेंट कैसे समझे। डेडिकेशन एक ऐसी चीज है ना जो आपको बेचैन करती है। आपको, जैसे आप नॉर्मल सुबह में उठे, आपने ब्रेकफास्ट किया और आप उसके बाद आपको टाइम मिला तो आप कुछ स्टडी करते हैं, नॉर्मल। ये डेडिकेशन नहीं हो। डेडिकेशन ये हुआ कि आप किसी वजह से you didn't study well yesterday, you maybe wasted your time yesterday by doing anything, and you select morning, you are not normal, you think that something I lost, and for that you are kind of people will see that he's not normal, the way you behave, the way you act, ये डेडिकेशन होती है। ये बच्चों में मस्ट है लाना, और ये मेरी ख्वाहिश है गार्जियंस की भी, और पहले गार्जियंस की, कि ये डेडिकेशन जो है वो 2-3 छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो डेडिकेशन को बढ़ाते हैं, या जिसमें डेडिकेशन का रोल है। जैसे मैं देखता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बच्चों को दें। कोई भी एक बाजार से कुछ लाना है आपको, तो आप शाम में पूछें कि आपने लाया कि नहीं। बहुत कॉमन है कि नहीं, आई फॉरगेट दैट, मे बी टुमारो आई विल गो एंड ब्रिंग इट। नहीं, ये चीज जो है ना कहीं उसके कैरियर में, क्योंकि आजकल हर चीज जो है कम्पिटिटिव है, हर चीज कम्पिटिटिव है। एक छोटी सी चीज, ये कमी अगर आपके बच्चे में है, तो यकीन जाने कि जब वो कोई अच्छी जॉब में जाएंगे और प्रोफेसर कहेंगे ओके जस्ट टू प्रिपेयर दैट स्लाइड, जस्ट टू प्रिपेयर दैट फाइल, ही विल से या ओके नो प्रॉब्लम प्रोफेसर, बिफोर स्लीप आई विल सेंड इट टू यू। लेकिन ये जो आदत है उनके अंदर, वो चीज कहीं ना कहीं उनको बैकफायर होगा। स्टूडेंट को लगेगा कि प्रोफेसर तो कल अवेलेबल है नहीं, तो वो तो देखेंगे डे बिफोर टुमारो, तो वो ये जो आदत उनके अंदर है वो मजबूर करेगी कि उस दिन ना भेजने की, और वो कल होके भेजेंगे। आजकल के दौर में प्रोफेसर देखेंगे 2 रोज बाद, लेकिन वो देखेंगे व्हेन डिड ही सेंड। इफ ही सी दो यस्टरडे ही डिडंट सेंड, दो ही ऑलरेडी प्रॉमिस्ड मी दैट आई एम गोइंग टू सेंड यस्टरडे, तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर होगा। तो ये चीज गार्जियन की जिम्मेदारी है। आप छोटी से छोटी चीज भी बच्चों को आप देखें, और अगर कमी है तो उसमें कोशिश करें। आप उसी तरह फोकस्ड है, आप बच्चे को कोई चीज कहते हैं कि आप ओके गो देयर एंड ब्रिंग समथिंग, और ओके जस्ट टू, if children told you I'm going to prepare one chapter in physics, and dad and mom I'm going to finish it today itself, in the evening just to ask son or daughter, did you finish it? If he says no, then you take notice why you didn't finish. Maybe 1 day 2 days try to give some kind of pressure. No son, if you promise you should do. No excuse at all, no that there was no light, because I thought maybe why not I will prepare tomorrow. नहीं, ये चीज बच्चों को के अंदर ये कमी है। तो एज ए गार्जियन बाकायदे इस पे काम करें आप। जिस तरह कोचिंग जब बच्चों को दिया जाता है, इवन फिजिकल स्पोर्ट्स की भी
तो पहले वो वीक एरिया देखते हैं, वो फिर उस वीक एरिया पे वो लोग प्रोफेशनल तरीके से उसको कम वक्त में कैसे उसको डेवलप कराते हैं। तो ये चीज एज ए गार्जियन आप देखें कि मेरे बच्चे में ये कमी है। पैशन का मैं एग्जांपल देता हूँ कि पैशन का भी होना जरूरी है। जब आप कोई कोर्स चूज करते हैं, जब करियर गाइडेंस की टीम से जब आप मिलते हैं तो वो सारी चीज पूछते हैं। उस पूछने के बाद वो एक मशवरा देते हैं कि ठीक है आप ये करें। उस मशवरे में बच्चों का भी रोल होता है, उसमें पैशन का होना बहुत जरूरी है। पैशन का एग्जाम्पल ये देखें, जो बहुत सारे जो स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से वो रखते हैं। अभी कोरोना है, देखिए कोई पूरी दुनिया में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं हो रही है, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, अपने आप को बॉडी को फिट रखने के लिए वो बाकायदे ट्रेनर हायर करते हैं। और ट्रेनर की ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ नॉट ओनली दे नॉक, generally guardian knocks, okay son and daughter get up, just perform fajr prayer, no, generally 1 or 2 times we knock it, that's all, no. But trainer not only knocks, trainer force him or force her, go and do that one, because if you didn't do, then after 2 or 3 months when you go, when you are going for national or any test or any one day or in T20, it needs, and some people who is watching, he will feel that he didn't do in last 2 or 3 months. आप देखें T20 और वन डे और टेस्ट में देखें आप, एक होता है रिफ्लेक्शन टाइम, यानी जब आप कोई कैच आ रहा हो किसी फील्डर के पास, तो आप जब देखते हैं कि बैट्समैन से चला और वो जब आपके पास पहुंचेगा, तो एक 35 इयर्स का जो प्लेयर होगा उसको 5 सेकंड लगेगा वहां तक पहुंचने में, और वही 25 साल का अगर वो है तो उसको सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे उसको सोचना और उसको एनालाइज करना और फिर वहां तक पहुंचना 3 सेकंड। तो ये 2 सेकंड जो है ना उसकी कैच की इफिशिएंसी को बहुत बढ़ा देता है। तो आप देखेंगे ये T20 में जो है एवरीथिंग वेल, परफॉर्मिंग वेल, बहुत अच्छा है, उसके बावजूद टीम T20 में नहीं रखती। आप देखेंगे आप बहुत सारे प्लेयर्स को, आपको ताज्जुब होगा क्यों, वही रिफ्लेक्शन टाइम वो देखते हैं कि एज के साथ उसका ताल्लुक होता है। तो आपको पता नहीं चला एक 50 साल का आदमी कहीं जॉब अप्लाई करता है यूएस वगैरह में, और वहीं पे एक 25 साल का आदमी जॉब अप्लाई करता है, तो यूएस में 25 साल वाले की थोड़ी सी एफिशिएंसी कम भी है तो वो उसको हायर करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन वही रिफ्लेक्शन टाइम में कि ही इज एबल टू ग्रास्प, व्हेन आई टीच हिम बिकॉज ऑफ हिज एज, नो, ही हैज मोर एफिशिएंसी, यू नो, कंपेयर टू हुज एज इज अराउंड 50। तो ये सारी चीज का ताल्लुक आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन सामने वाले जो हायर करने वाले हैं उनको पता चलेगा। तो एज ए गार्जियन ये चीज भी आप बच्चों की जो काउंसलिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो गार्जियन है एक ऐसी चीज, माँ बाप ऐसी चीज होती है जो आप रेगुलर 24/7 आप बच्चों को देखते हैं और बच्चों की एफिशिएंसी आप देखते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको मशवरा देते हैं। आपको कभी पता नहीं चलता है कि नहीं अरे ही इज नॉट लिसनिंग मी, आई एम आस्किंग, आई एम रिक्वेस्टिंग, बट नो, लेकिन बच्चे के कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज जाती है, भले उसकी स्लो हो लेकिन वो जाती है वो। तो आपका एज ए गार्जियन काम है कि बच्चों को आप इस तरह से तैयार करें, क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है इसमें हर चीज का एक वो स्कोर होता है। अगर आप स्कोर लें तो कहीं ना कहीं वो स्कोर रिकॉर्ड होता है। वो तो छोटी छोटी चीज को आप इजी ना लें, आप उसको उसमें आपका रोल हो। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक इजिप्ट का एक स्टूडेंट था और वो फिजिकली बहुत दुबला पतला था, और वो उसको अंडरग्रेड जो यूएस में है वो फ्री नहीं होता, काफी अच्छी फीस होती है, तो उसको कंप्लीट वो फ्री था वो, क्योंकि उसका जो ग्रेड बहुत अच्छा था। तो मैं देखता था कि उनकी मॉम जो थी ना वो प्रोफेसर थी, तो वो कहीं और, अब बेटा कहीं और, अब मैंने गार्जियन के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो, और ऑनलाइन आजकल जो असाइनमेंट या होमवर्क ऑनलाइन होते हैं तो माँ बाप भी देख सकते हैं, तो हर वक्त उनकी मॉम देखती रहती थी कितना तुमने पूरा किया और कितना बाकी है। एक दिन देखा मैंने कि रात में 9-10 बजे वो कॉल अटेंड किया अपनी मॉम के, उसके बाद मैंने देखा कि रूम में नहीं है, इससे पूछा तो बोला कि मैं जिम गया था, क्योंकि मुझे फिजिकल कुछ है इश्यूज, तो मुझे जिम भी जाना होता है। तो मेरी मॉम दिन भर मुझे 24/7 मुझे स्टडी के लिए भी, जिम के लिए भी, असाइनमेंट के लिए वो करती रहती। तो उसको देखा मैंने उसकी एफिशिएंसी और वो उसका जो परफॉर्मेंस देखा, तो ठीक है इंटेलिजेंट रहा होगा, लेकिन माँ बाप का रोल मुझे लगा कितना जरूरी है, क्योंकि इंसानी फितरत है कि आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप थोड़ा सा फोकस में कमी होती है आप, तो वालिदैन का जो कॉल होते हैं, वालिदैन के जो मशवरे होते हैं, वालिदैन का जो नॉक होता है उसका असर होता है। तो आप इसका भी है, आप 24/7 whatever the technology you have you can use it, no? But try to knock, try to act, try to request.
for the time being you think that it is not working, but it is working. Maybe you are not seeing the result, maybe the right time, but maybe after 1 year, after 2 years, after 3 years, it will work. It will give some kind of result. खैर थोड़ा सा मैं कोर्स है। हाँ, तो ये मैंने पैरामेडिकल कोर्सेज का बताया। आप फिर दूसरा स्लाइड में आप दूसरा स्लाइड ला रहा हूँ। हाँ, देखिए आप इसमें आप पैरामेडिकल कोर्सेज में ये सब जो कोर्स है ना वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के हैं। ये जो आपने देखा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, ये जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज हैं। और बहुत सारे कोर्सेज इंडिया में, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें फ्री एडमिशन होते हैं, आपको उसका टेस्ट देना होगा। तो टेस्ट का भी जो है ना वो जो प्रोएक्टिव टर्म मैंने यूज किया है, गार्जियन को भी एज ए स्टूडेंट को भी आपको जानना होगा कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं जहाँ फ्री एडमिशन होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन होगी, फिर उसके हिसाब से आप टेस्ट देते हैं। अगर आपके नीट की अच्छी तैयारी होती है तो ये सब कोर्स में दाखिले कंपैरेटिवली बहुत आसान होते हैं। आप जैसे नीट हुआ, उसके बाद आप नीट नहीं हो पाया तो आपने बीएससी कहीं किया, कहीं से भी किया, लेकिन आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप ये सब कोर्सेज जो है गवर्नमेंट के या डीम्ड यूनिवर्सिटी के, उसमें कंपैरेटिवली आपको आसानी से दाखिला मिल जाता है। और ये सब कोर्स में आप एक बार दाखिला ले लेते हैं आप, जैसे आप देखें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज पुणे, तो आप सोच नहीं सकते आपका इतना अच्छा कैरियर इंडिया में भी और बाहर भी होता है। इसलिए कि आप गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं यहाँ, भले उसकी बिल्डिंग बहुत खराब हो, भले उसका जो लुक बहुत खराब हो, नहीं उसमें कोई इस तरह के फैसिलिटीज नहीं हो, लेकिन यूएस में भी जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जो बड़े बड़े जो प्रोफेसर, उनको सब पता होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन है, प्राइवेट कौन से हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज को वो लोग काफी फौकियत देते हैं। वो दे नो दैट they compete, that is that they got admission in that college। तो आप कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें दाखिला लेने की, उसमें नहीं हो पाए तो डीम्ड में आए, उसमें नहीं आया तो प्राइवेट में आए। फिर कोशिश करें कि स्कॉलरशिप, आप कोशिश करें कि स्कॉलरशिप लें। आप स्कॉलरशिप का ताल्लुक जनरली होता है कि पैसे से नहीं, स्कॉलरशिप का होता है कि आपका प्रोफाइल उससे अटैच होता है, तो आपको हायर स्टडीज में काफी आसानी होती है अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तो ये सब जो अभी आपने जो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च, ये भी जो है इसमें पैरामेडिकल में आते हैं ये। और ये सब जो इंस्टीट्यूट है, जैसे ऑल इंडिया जो एम्स जैसे आपने देखा, या बेंगलोर मेडिकल कॉलेज हैं, ये सब कॉलेजेस में पैरामेडिकल भी मिलेंगे, फार्मेसी भी मिलेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी मिलेंगे। ये सब को चूंकि एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इदारा है, तो ये सारे कोर्सेज भी इस सब में रहते हैं। और ये सब में अगर आप एक बार दाखिला ले लेते हैं छोटे कोर्स में भी, तो चूंकि गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं तो बाहर में आपका रेपुटेशन काफी अच्छा हो जाता है, काफी आपको जो है। नेक्स्ट स्लाइड आए। हाँ, ये फार्मेसी। अच्छा, फार्मेसी में जो जनरली आप बैचलर्स प्रोग्राम करें फार्मेसी में, डिप्लोमा अभी मैं मशवरे में, आप बैचलर्स प्रोग्राम करें। अब बैचलर्स के बाद जो 1-2 साल का डिप्लोमा है वो बहुत इफेक्टिव है। वो आप पर्टिकुलर किसी जॉब के अगेंस्ट आप वो करें तो काफी इफेक्टिव है। बैचलर फार्मेसी में एक और चीज देखा मैंने कि अगर आप एम फार्मा करते हैं तो इंडिया में इवन यू डिडंट सी एनीबॉडी who did MTech in pharmacy and who is jobless. Definitely he will get a job with very good salary, even in Delhi, even in metropolitan city. So pharmacy, if you have 4 years degree course, then if you are interested for 1 or 2 year diploma, especially for any particular field, then you do that one, and then definitely you will get very good job. अब देखें इसमें कि 4 लाख फार्मेसी स्टूडेंट जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं, और आपको ताज्जुब होगा, मैं अभी एक डेटा देख रहा था इसी प्रेजेंटेशन के लिए कि 2012 या 13 में टोटल जो है वो 34 लाख स्टूडेंट जो है प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिए, और वो 2014 या 15 में 39 लाख चले गए, 14 या 15 में। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन होता रहा, और अब इस साल स्पेशली जो वो 30 to 32 लाख हो गए लगातार। और उसमें जो कमी आई है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग में कमी आई, बाकी सारे जो फार्मास्यूटिकल जो जैसे फार्मेसी हुआ, पैरामेडिकल हुआ, हॉस्पिटल में, उसमें कमी नहीं, बल्कि उसमें देखिए लास्ट सेंटेंस जो है आप लोगों के लिए 4 लाख फार्मा स्टूडेंट ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, और 30% देख लिए फार्मेसी सीट्स अक्रॉस इंडिया अप बाय नियरली 30%। एक आप ये 18-19, जबकि इंजीनियरिंग का बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है।
आपको ताज्जुब होगा कि मैंने अपना जो अभी इंस्टीट्यूट हम लोगों ने शुरू किया है, बहुत सारे इंजीनियर्स की कॉल आ रही है जो 1 या 2 साल का कोर्स है। यकीनन वो बहुत अच्छा है वो उनके लिए, इनका बैकग्राउंड के हिसाब से। इसमें थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत होती है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर इंजीनियर है तो उनके लिए भी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा मैच करेगा वो। फार्मेसी में ये देखिए ये सब सारे कोर्सेज हैं। जनरली हम लोग बी फार्मा लेंगे। फार्मेसी में भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिक्स है, ये सब जनरली होता है क्या है ना, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज इंडिया में है उसके यहाँ पर्टिकुलर कोई कोर्स फार्मेसी का जैसे बी फार्मा फार्मास्यूटिक्स हुआ, कहीं बी फार्मा फार्माकोग्नोसी हुआ, तो ये सारे कोर्सेज बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। मतलब आप अगर प्रोफेशनल को हायर स्टडी में जाना है उसके लिए भी, जॉब में आना है उसके लिए भी, और अभी जो सिचुएशन है कोविड का या अभी जो इतना डिक्लाइन है या जॉब मार्केट बहुत डाउन है, उसमें भी इन सारे कोर्सेज के बहुत अच्छी इफिशिएंसी है। जॉब इन टर्म्स ऑफ टू गेट ए जॉब एंड इन टर्म्स ऑफ द सैलरी, इन टर्म्स ऑफ job growth, means after 5 years your rank, your position will be very good compared to right now. तो ये सब को हाँ, उसके बाद अब आप अगर जैसे मैंने कहा डिप्लोमा इन फार्मेसी है, तो मैंने कहा कि आप बैचलर्स के बाद आप आए। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है जो जैसे एग्जाम्पल में जैसे बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी किया है इन्होंने, और उसमें उनका कोई प्रोजेक्ट उन्होंने फार्मेसी का किया है अगर, तो वैसे स्टूडेंट फिर 1 या 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी करके फार्मेसी में करियर बना सकता है, वो बहुत अच्छा भी रहेगा। फिर से एक बार सुन लें, जैसे किसी ने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी किया है या बीटेक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स किया है, और वो अगर 1 या 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी में आप करते हैं इस तरह के कोर्सेज, तो बहुत इफेक्टिव होंगे वो, बहुत इफेक्टिव। लेकिन +2 करके अगर आप 1 या 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं, नहीं, in India it is almost negligible, because in India the companies, the employer, very easily they are getting graduate in pharmacy, then why they will hire for diploma in pharmacy? अगर वो हायर भी करते हैं तो 6 महीना 1 या 2 साल का नहीं, आप कैरियर उसमें आपका नहीं बन पाएगा। कैरियर आप 5 साल 10 साल के बाद फिर आपको यकीनन फिर आपको बैठ जाना पड़ेगा, तो वो कभी मैं मशवरा नहीं दूंगा। तो डिप्लोमा 1 या 2 साल का ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी किया हो या बीटेक इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स किया हो या बीटेक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, उसके लिए 1 या 2 साल का है। वरना +12 पास करने वालों के लिए मैं कभी मशवरा नहीं दूंगा उसके लिए। हाँ, अब आए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ये जो सारे कोर्सेज देख रहे हैं काफी अच्छे कोर्सेज हैं, काफी, मतलब यू कांट एक्सपेक्ट, मतलब इन इंडिया you may get maybe 15 lakhs per annum, 20 lakhs, that these are the institute. If you are doing from this type of institute, you can't imagine how much you will get it. लेकिन again आप दें कि आपने +2 करके अगर 1 या 2 साल का आप हॉस्पिटल, जो बहुत आप गली में मोहल्ले में आप देखेंगे, नहीं, वो कभी मैं मशवरा नहीं दूंगा। वो 1 या 2 साल का जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जो इस तरह के कोर्सेज हैं वो एकदम लो लेवल के हैं, आपको जॉब भी मिल जाएगी, स्पेशली गल्फ में आप जाएंगे, लेकिन जो उनकी जो जॉब, नेचर ऑफ जॉब होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होगी, वो मतलब इट डजंट लुक गुड, एग्जैक्टली यू आर एज लाइक लेबर, तो वो उसमें मैं कभी मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, आप बैचलर्स के बाद बैचलर्स प्रोग्राम इसमें करें या बैचलर्स के बाद 1 या 2 साल का कर सकते हैं, ये मैं मशवरा दूंगा। तो ये रहा, तो फार्मेसी हो गया, पैरामेडिकल हो गया, और ये जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब कोर्स, ये सब जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपको करने हैं, तो ये सब है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, चेन्नई, पुणे, मुंबई, ये सब गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं। इसकी फीस भी मैंने नीचे नोट किया, देखा आपको ताज्जुब होगा, इससे आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ 4,000 से 12,000। इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, इसलिए इतनी कम फीस है, इसकी रिकॉग्निशन बहुत अच्छी है। और आपको ताज्जुब होगा कि इस तरह के कॉलेजेस से पास होने, फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, उसके बिल्डिंग पे ना जाएं, बिल्डिंग बहुत खराब होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर या फैकल्टीज या ये सब होंगे, लेकिन चूंकि आपका दाखिला यहाँ हुआ है, तो यू विल गेट वेरी इजीली गेट एडमिशन फॉर मास्टर, फॉर PhD प्रोग्राम इन डेवलप्ड कंट्रीज विद स्कॉलरशिप, बिकॉज यू आर इनरोल इन दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट। मैंने वही डिफिनेशन दिया है कि जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स या हेल्थ मैनेजमेंट में basically total of how you are controlling how you are managing the hospital,
since you are managing the hospitals, means you are connected with concern with hospital, with patient, with timing, with the infrastructure. By using all in optimum way, this type of professional they need, so that they can handle very well the number of patients, the resources, the hospital, everything, all the infrastructure. So that is why they need hospital management fellow. Okay. तो एक हम लोगों ने एक वो सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट शुरू किया है, और यही मकसद, यही इसी नुक्ते नज़र से। और इसमें हम लोगों का जो मैंने बताया कि 10th के बाद अगर किसी को लेना ही है अगर दाखिला, तो 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा होगा, और फिर उसके बाद बीएससी अगर करना चाहेंगे वो, तो हम उसको लेटरल एंट्री देंगे, तो उसका 1 साल नुकसान भी नहीं होगा और बीएससी में भी जा सकते हैं। पैरामेडिकल में एक खास बात मैंने ये देखा है कि आप 1 या 2 साल का भी कोर्स करते हैं, आप जैसे एडमिशन लेते हैं कि मिनिमम आपकी जो है 10-15 हज़ार आप छोटे शहर में भी आप अर्निंग कर सकते हैं। मान लिया आप ऑफिशियली कहीं जॉब ज्वाइन ना करें, लेकिन आप ब्लड सैंपल ला सकते हैं आप आराम से। आप कोई भी एक्सरे की कोई लैब है छोटी मोटी या कोई छोटा मोटा वो सेंटर है, उसमें आप उसको एज ए हेल्पर यूज करते। सिंस यू आर डूइंग दैट कोर्स, इजीली यू विल गेट 10 to 15,000 rupees. So two benefits. One, you are getting money, at the same time you are getting experience for which you are doing course. So if you, after finishing this course, if you mention that I have been doing since last 2 years in particular lab and particular hospital, then you will get extra because you have experience as well as degree. तो मैं पैरामेडिकल में मैं महसूस किया है कि आप 1 या 2 साल का भी कोर्स अगर स्टार्ट करते हैं, तो इस दरमियान में भी आपकी 10-15 हज़ार सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। इससे आप ट्यूशन जो है एनुअल एज वेल एज मंथली जो है वो भी आपका हो सकता है। और आजकल के दौर में जब आप यूएस जाते हैं तो आपको ताज्जुब होगा कि आप वहाँ जो ऑफ कैंपस जॉब करते हैं, वो ऑफ कैंपस जॉब में यही होती है। आप हॉस्पिटल या आप होटल में, रेस्टोरेंट में आप वो जॉब करते हैं, आप प्लेट सर्व करना, प्लेट धोना, ये वो सब। तो आप जब किसी अच्छे कोर्स में आप दाखिला होते हैं और ये सब आप करते हैं, तो आप जिसको सर्व करते हैं वो भी आपको इंपॉर्टेंस देता है यूएस में। आपको वो भी समझता है कि ही इज बिगर देन मी, आफ्टर 1 year 2 years ही इज गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, इज गोइंग टू बिकम इंजीनियर। तो आप उसको वो करते हुए आप पर्सनल आपका मंथली वो भी होता है और आप फिर कोर्स भी करते चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो वही सर्टिफिकेट डिप्लोमा बैचलर प्रोग्राम है वो 1, 2, 3 years का है, और इसमें आप 10th के बाद ले सकते हैं। 10th के बाद अगर मैं 3 साल लिया और फिर आपको बीएससी करना है जैसे मैंने बताया, तो आपको लेटरल एंट्री मिलेगी, यानी आप बीएससी प्रोग्राम टोटल 5 years में कर सकते हैं। और आप जैसे एडमिशन लेते हैं तो आप कहीं ना पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ पूरे इसके लिए, कि जो लोग फौकानिया से पास होते हैं, पता नहीं दूसरे स्टेट में इसका क्या नाम है, जो फौकानिया से दैट इज इक्विवेलेंट टू 10th, तो हम उसको दाखिला, हमारे यहाँ दाखिला वो डिप्लोमा में ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ डिप्लोमा करें, उसके बाद फिर लेटरल एंट्री बीएससी करें, यानी एक मौलवी, एक जो ग्रेजुएट वो हुए हैं फौकानिया पास हैं तो वो इसके हमारे थ्रू वो बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं बगैर 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री किए हुए। तो ये खास हमारे यहाँ एक वो, मुझे लगता है ये कभी भी बंद हो सकता है वो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको यूज करें जो भी फौकानिया या वस्तानिया। फौकानिया बेसिकली इक्विवेलेंट टू 10th है। हम लोग ये सब, चूंकि हमारा जो यूनानी मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है, तो उसमें हम मेरे यहाँ जो लैब फैसिलिटी है वो बेसिकली जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट होंगे उनकी लैब जो है वो यूनानी मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट उनके साथ ही होगी। और ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं इनका इंपॉर्टेंस जो है ना वो लैब है बेसिकली। Nobody is going to ask you what is the definition, how you do, rather they will ask you, okay, go and perform this, go and do this lab test, no? So if you have working hand, if you work with any hospital, any lab, then very easily you can perform this one in lab. So that is why our paramedical course is attached with this Unani Medical College. Next आ जाए। हाँ, अब हम लोगों ने एक अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन जो ब्लड है, जो कोविड पेशेंट होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं तो उनका तो मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई कोविड पेशेंट हैं और वो उनको अगर उनका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है तो फौरन हम लोगों को ऑक्सीजन देना पड़ता है, और उसकी अगर शिद्दत और ज़्यादा हो गई तो हम वेंटिलेटर पे ले आते हैं। तो न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में बाकायदे ये टेस्ट कर रहे हैं लोग कि whether his oxygen concentration is blood is low. If low, immediately he needs cylinder, he needs ventilator.
तो हॉस्पिटल के बाहर में वो ये टेक्नोलॉजी यूज करते हुए उसका टेस्ट करते हैं और फिर वो उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा बायोसेंसर, जिसकी लास्ट स्लाइड पे आ जाए, हाँ ये देखिए छोटा सा बायोसेंसर बना है जो घड़ी शेप का होगा, और इसमें हम कहीं से ब्लड नहीं लेते हैं, हम स्किन पे रखेंगे और स्किन से ही हम आपका ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन जो ब्लड है वो लेते हैं, आपके हार्ट रेट लेते हैं, आपका स्किन टेम्परेचर लेते हैं और आपकी स्किन रेसिस्टिविटी लेते हैं। ये चारों चीज हम आपका लेते हैं, ये सारी चीज हम ले लेते हैं आपका। और ये जो टेक्नोलॉजी हमारी है, मुश्किल से इसको अभी हम लोगों ने अलग अलग चाइना से इंपोर्ट करके जो किया है तो मुश्किल से इसकी 6-7 हज़ार रुपया आ रही है, जो यकीनन जब हम बल्क लेवल पे जाएंगे इंशाल्लाह यकीनन इसकी कॉस्ट होगी। लेकिन बहुत इजीली हम लोग डेटा लेना शुरू कर दिया है, डेटा आना शुरू किया। अभी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि वो डेटा अगर हम किसी स्केल पे, अगर ये हमारा सिस्टम ये कहता है कि यू नीड्स ऑक्सीजन, तो इसी चीज को हम दूसरे पेशेंट पे देखेंगे। तो अभी हमारा एनालिसिस फेज में चल रहा है, जब ये हो जाएगा तब हम उसको कमर्शियल आएंगे। बहुत सारे मेरे पास ऑफर यूएस के भी आ रहे हैं और इंडिया के भी आ रहे हैं, लेकिन हम पहले टेक्नोलॉजी को यूज कर लेंगे, पहले हमारा डेटा आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे ये वर्सेटाइल है कि नहीं, वेदर सेम टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर यू फॉर जनरल पीपल और नॉट। तो अभी वो फेज हमारा जारी है और मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से कहना चाह रहा हूँ कि बहुत इजीली, बहुत हैंडी इंशाल्लाह, जो स्किन टेम्परेचर के लिए जो थर्मामीटर हम लेते हैं, जो ग्लूकोज जो हम लोग मेजर करते हैं, जो हम लोग ये सब चीज इंशाल्लाह हम अपने स्टूडेंट को खुद अपनी लैब में बनवाएंगे। ये स्किन टेम्परेचर के लिए यानी थर्मामीटर बनाएंगे, ग्लूकोज के लिए हम लोग बनाएंगे, हीमोग्लोबिन लेवल के लिए, ये सब बहुत हैंडी है। बहुत जैसे आप शर्ट में बटन लगाते हैं घर में बैठे बैठे, कहीं आप जाते नहीं है कहीं पे, बाय चांस यू नीड, यू डू बाय योरसेल्फ, you didn't ask from your, even from your mom. Same inshallah, our people who will graduate from this institute, because I know inshallah they are going to make these small devices by themselves. और किसी चीज, किसी मशीन को ऐड करना बहुत मुश्किल चीज नहीं होती। जैसे अभी ये जो मैंने दिखाया, अभी हमारी एक हॉस्पिटल से बात हो रही है, हॉस्पिटल में जो आप हार्ट रेट लेते हैं, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में बहुत बड़ा इक्विपमेंट होता है। हम ये छोटी सी टेक्नोलॉजी से हम 10-15 पेशेंट का कोई बेड का कोई हॉस्पिटल होगा, उस 10-15 पेशेंट को हम ये घड़ी पहनाएंगे और रिमोटली, तो वो हॉस्पिटल मेरा होगा मुंबई में और मैं दिल्ली में बैठे बैठे अपने सिस्टम पे देखता रहूंगा उनका ईसीजी, उनका हार्ट ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन ब्लड रिमोटली। अगर वो अपने हाथ से हटाते हैं वो भी मुझे आ जाएगा वो उसमें, और उसको मैं मेरी जो एल्गोरिथम है, जो मैंने एल्गोरिथम बनाया है, वो आपके इमोशंस को डिटेक्ट करेगा। वो बताया नहीं, सॉरी, अभी जो मैंने मशीन लर्निंग पे एल्गोरिथम बनाई है, जो आप मेरे लैपटॉप के सामने आएंगे तो वो हमारा जो एल्गोरिथम वो बताएगा कि यू आर सैड, यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर हैप्पी। अब ये चीज जो हैप्पी या एक्साइटेड है, वो एक्टर जो है वो दे आर सो श्रूड, दे आर सो स्मार्ट, दे एट द सेम टाइम हमको लगा कि वो बहुत सैड है, एट द सेम टाइम यू फील, आई फील दैट ही इज वेरी हैप्पी। तो हम लोगों ने क्या किया है, बॉडी की फिजियोलॉजी से उसको ऐड कर, उसको इमोशंस का जो हमारा एल्गोरिथम है उसको बॉडी की फिजियोलॉजी से ऐड कर देंगे। अगर बॉडी की फिजियोलॉजी से ऐड करेंगे तो हार्मोन लेवल तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना। तो ये अभी जो मेरा कंप्लीट जो पैकेज हमारा तैयार होगा, उस पैकेज से हम टीचर्स की एफिशिएंसी पे, हम क्लास में जो हमारा ऑनलाइन कैमरा होगा उससे हम बैठे बैठे देख लेंगे कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में टीचर की एफिशिएंसी कैसी होगी। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जैसे मैथ और साइंस में हमारे बच्चों का इमोशंस कैसा होगा, कैसा है, 50% बच्चे एक्साइटेड हैं किसी पर्टिकुलर टीचर के लिए, और वही सेम बच्चे अगर दूसरे टीचर के लिए 70% एक्साइटेड हैं, तो इससे हम समझ जाएंगे कि हमारे जो टीचर हैं उसकी एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं कमी है। तो इससे हम स्टूडेंट की इवैल्यूएशन भी कर लेंगे, टीचर्स की इवैल्यूएशन भी कर लेंगे, स्टूडेंट का मोटिवेशन भी, अगर हम देखते हैं कि स्टूडेंट को साइंस या इंजीनियरिंग में मोटिवेशन कम है, तो हम उसके लिए पर्टिकुलर इस तरह के स्पीकर ला करके हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और देखेंगे कैसे, थ्रू हमारे सॉफ्टवेयर। बहुत हैंडी है, बहुत सस्ता है, बहुत चीप है, और कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बड़ी, इंशाल्लाह वो एक दिन आएगा, पिछले मौका आएगा जब मैं इसको करके आप लोगों के सामने इंशाल्लाह लाऊंगा। आप कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले लिया। Not at all, doctor. Lovely session. Thank you so much for all your efforts and wish you all the very best with your biosensors.
And I'm sure all of the participants who are planning to become like Dr. Sufyan, please, feel free to contact him. His coordinates are here. And now we'll quickly move to the question and answer session, Doctor. So there are a few questions that have come from the participants who want to know a few things. So first, Dr. Nabi Rasool says BSc, and with what kind of combination BSc can be selected? He's asking. I think this question has also already been answered. So we've already shared the slide where we've shared the what different types of BSc options are available. So these are all BSc options that are available. So people who want to have an answer to that, BSc nursing, dialysis, medical, etc. So I will not bother doctor with that question. 1 minute, Dr. Shahzad. 1 minute, Dr. Shahzad. 1 minute. For example, in this paramedical, if a student is very much efficient, very smart, then I will strongly encourage him go for bachelor's in radio imaging technology. If he is average, then optometry, X-ray. If he is below average, then I will suggest him for medical lab technology. Sure, thank you. And next question is Nadeem Haq. He says, Doctor, could you please update us on the doctorate in pharmacy, as we are from Mumbai? So I think he wants to know doctorate in pharmacy ke liye, what is the status in Mumbai and where they can pursue it in Mumbai. अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, ये जो 2 कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए भी, शाहजाद भाई, और एएमपी के लिए भी, अगर किसी ने एमटेक कंप्यूटर साइंस में किया है या एमटेक इन फार्मेसी किया है अगर, तो बहुत इजीली बगैर ट्यूशन के वो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा इंशाल्लाह, बहुत इजीली। थोड़ा सा क्या होगा कि आप जब फाइनल ईयर में हो, आप थर्ड ईयर जैसे पास हो, एक टर्म मैंने कहा था प्रोएक्टिव, इसमें काफी कमी है हम लोग के अंदर, काफी कमी। हमारे पास प्लान ए भी जब जरूरत होती है तब बनता है, जबकि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो थर्ड ईयर में अगर जो इंजीनियरिंग कर रहे हो या जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कि आप जो है ना जीआरई या टॉफिल आप शुरू कर दें वो करना, प्रैक्टिस ऑनलाइन। और आपका एवरेज स्कोर भी अगर है तो 2 का तो मैं श्योर कह रहा हूँ, फार्मेसी और कंप्यूटर साइंस से जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, very easily you will get MTech and PhD program without you don't have to pay tuition fee, and monthly also you will get it. तो आप जो MTech फार्मेसी जो आप कर रहे हैं, यकीनन आप जाएं PhD प्रोग्राम में, आप किसी भी डेवलप कंट्री में, यकीनन। और मैं स्ट्रांगली आपको इनकरेज कर रहा हूं कि आप जरूर जाएं। और आप अगर 30, 40, 50,000 भी अगर आपको यहाँ मिल रहा है, तो आपको वहाँ PhD प्रोग्राम के साथ साथ इतने पैसे मिलेंगे। और आप इसमें वो ना, अगर मुझे इजाजत हो इन लोगों की तरफ से, तो मैं जब गया था पीएचडी करने, तो मेरे पास एक बेटी भी थी और वाइफ भी थी। उसके बाद मैंने जो एमएस किया, फिर पीएचडी किया, और इतने थे पैसे कि आप यहाँ की जो आपकी लाइफ स्टाइल है शायद उससे बेहतर ही होगी वहाँ, आप एज ए स्टूडेंट भी। आप यकीनन आप जाएं, आप जिनका भी ये क्वेश्चन था आप जरूर जाएं आप पीएचडी प्रोग्राम में। Okay, thank you, Doctor. Next question, Professor, is could you please tell us the scope in pharmacy and what jobs I can have in pharmacy? What types of jobs and what is the scope? या मैंने बैचलर्स करने के बाद मैं इंडिया में भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बहुत सारे पर्सनल लोगों को जानता हूं मैं, तो उन लोगों ने जॉब ज्वाइन किया है और कैंपस सिलेक्शन होता है, फिर जॉब ज्वाइन करते हैं वो। लेकिन देखिए अब एक तरफ है ना, एक तरफ जरूरत क्या है और एक तरफ होना क्या चाहिए, उसको भी थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि एम्बिशन हमेशा हाई होना चाहिए। जब एम्बिशन हाई होते हैं तो एम्बिशन आपको, आपकी बॉडी को मजबूर करता है कि डू समथिंग, इवन योर एज इज 30 or 35 years, बिकॉज ऑफ एम्बिशन विल टेल यू नो यू आर ओनली 20, यू आर ओनली 22, गो एंड यू प्रिपेयर दैट एग्जाम। तो बैचलर्स प्रोग्राम में अगर आप जॉब ज्वाइन भी करते हैं, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं अगर आप, तो मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि आप उसको टेम्प्रोरी 1 साल 2 साल के लिए करें। आप कम से कम आप मास्टर प्रोग्राम के लिए, आप हायर स्टडीज के लिए, दूसरे कंट्रीज के लिए जरूर कोशिश करें। आप अगर आपकी एज 22, 23, 24 है, तो यकीन माने कि आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास बहुत इफिशिएंसी है।
सिर्फ और सिर्फ आप वक्त को व्हाट्सएप में या इंटरनेट से आपको खाली निकालना है बस। तो आपको है जॉब, बैचलर्स के बाद है जॉब, आप जॉब भी ज्वाइन करें, लेकिन उसको कैरियर ना बनाएं आप मास्टर प्रोग्राम के लिए आप कहीं ना कहीं आप, या कोई जो इंडिया में बहुत सारी जो कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जरूर उसके लिए कोशिश करें आप, जरूर उसके लिए। इसलिए कि अब देखें ना आजकल की दुनिया में, अगर इफ एनी एम्प्लॉय they need even only bachelors, but they are already getting MTech or master, then definitely he is going to hire master student, नहीं? और आप देख ही नहीं, तो उसमें है कि आप बैचलर्स के बाद है जॉब, आप बस आप फार्मास्यूटिकल कंपनी को देखें, आप मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को वो लिया भी है। उसमें यह है कि जब आप में पर्टिकुलर होता है ना जॉब की जो एफिशिएंसी होती है, आप उस या जॉब कि उसमें ये देखना होता है कि जैसे आप आईटी में आप जब होते हैं तो जैसे एएमपी बहुत सारे छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार हो या छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 15 डेज 20 डेज 30 डेज, तो वो सब भी कोर्स जो है ना फार्मेसी में इस टाइप के अगर एएमपी ऑर्गेनाइज करें, उसमें ये देखें कि किस टाइप की जॉब है, और हमारे जो जनरल ग्रेजुएट होते हैं उसमें ये चीज़ कितनी कमी होती है, और वो 15-20 रोज में उसकी भरपाई हो जाती है, फिर वो जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास आंसर नहीं होगा, लेकिन है जॉब जी। हमारा जॉब फेयर भी होता है, बट we work on that as well. Thank you, doctor. Next question, Sadaq Hassan says, currently I am doing BME. If I am unable to get job after my graduation, then can I take diploma and paramedical as plan B? BME means BME means bachelor of okay, I am not very sure about that answer, so Sadaq, you can reply to that question again. In the meanwhile, we'll ask one more question. Kaleem Raza asks, I request you to please tell me about BSc Nuclear Medicine, and also tell me about which is the best master course in pharmacy, please. BSc Nuclear Science. Yeah. Nuclear medicine, very high demand job, very high demand, not only job in research also, because it comes under nuclear medicine as it comes under nanotechnology also, and my second master in molecular science and nanotechnology. ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन है वो बहुत अच्छे कोर्स हैं, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट जैसे आप इसमें एम्स है दिल्ली, वहाँ होते हैं ये सब कोर्स में। अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में किसी वजह से नहीं हो पाया तो आप प्राइवेट में भी जाएं आप और बैचलर्स करें, लेकिन ये सब जो कोर्सेज है ना उसमें कोशिश करें हायर स्टडीज की। फिर उसमें हायर स्टडीज में मेरा मशवरा है कि आप हायर स्टडीज का, मेरा यकीनन किसी भी सिचुएशन में मेरा ये मशवरा है कि आप अब्बू अम्मी से पैसा नहीं, आप खुद इफिशिएंट वो हो जाएं कि आप ट्यूशन, आप अगर इंडिया में भी हैं कहीं किसी कोर्स में लेना है तो आप जो 1 या 2 साल का पैरामेडिकल कोर्स है उस टाइप का आप ज्वाइन करें, उससे कुछ अर्न करें और उससे आप एमटेक या मास्टर करें आप, और आप ताकि आपका ये कोर्स भी हो जाए, आपको फाइनेंशियल प्रेशर भी वालिदैन पे ना हो। और वालिदैन पे जब नहीं होता है ना तो स्टूडेंट के लिए है कि आप भी कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है आपकी इफिशिएंसी पे। एक मिनट में थोड़ा मेरा चार्जर तो एक Anybody has any questions, this is the right time to ask because we'll be wrapping up the session after the Q&A is over. So you please ask your questions right now. एक जो क्वेश्चन था बैचलर्स बीएमई वो बीएससी, हाँ नहीं उनका आंसर तो नहीं है अब तक, पर बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन का आपने क्लियर कर दिया है। और वो पूछ रहे हैं कि फार्मेसी में मास्टर कोर्स बेस्ट वाला कौन सा है। उसमें एग्जैक्ट कौन सा तो नहीं बता पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, बट डेफिनेटली एनी मास्टर इज in pharmacy. So yeah, he's replied, he's saying BME in biomedical engineering. बायोमेडिकल तो आप मतलब आप यू आर वेरी क्लोज टू ना, आप तो पैरामेडिकल के बहुत करीब हैं, तो आप फॉर सिंस यू हैव ऑलरेडी बीएमई और यू आर डूइंग ए बीएमई, सो इन दैट सिचुएशन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग पैरामेडिकल radio imaging. Okay. Radio imaging technology is very close to or very good for you. Even you will get some kind of edge if you join somewhere, or if you apply for master for PhD program, since you have bachelor's and plus 1 year or 2 years
डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, देन डेफिनेटली यू विल गेट एज। आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, रेडियो इमेजिंग। Next question, doctor, is about physiotherapist. How do I build a career in physiotherapy? फिजियोथेरेपी में एक्चुअली जो आजकल के जो कोर्सेज हैं, थोड़ा सा मैं मतलब ट्रेडिशनल नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें हमेशा ये देखें कि जॉब डिमांड किस चीज़ की है। आप कोई पौधा आपका बीमार होता है तो आप ज़्यादा आप डॉक्टर के पास जाके एक दवा लाते हैं, आप MRI, आप CT स्कैन नहीं, आप ये सब चीज़ नहीं हो सकता। उसी तरह आप एनिमल और ह्यूमन में जाएं तो आप एनिमल का ठीक है, आजकल कुत्ता का बहुत डिमांड है, लेकिन फिर भी आप ह्यूमन से। तो उसी तरह जब आप कोई कोर्स करते हैं ना, तो उसमें ज़रूर ये ध्यान दें कि उसकी डिमांड क्या है, उससे क्या होता है, उससे जॉब, फिर उससे जॉब से उसकी फिर आपकी सैलरी। तो फिजियोथेरेपी अभी भी इंडिया में मैं देखता हूँ कि अगर किसी का पाँव वो होता है तो वो मान के चलता है कि वो दोनों पाँव सीधा नहीं होगा। नहीं, US में अभी भी है कि डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि दोनों पाँव पूरी तरह सीधा कर दें। यहाँ बाकायदा डॉक्टर ही कहेंगे अरे टूट गया है तो तुम्हारा कैसे सीधा हो। यानी मतलब फिजियोथेरेपी की जरूरत है, लेकिन उसने सर्विस लिया नहीं उसको, तो थोड़ा सा मतलब डिस्करेज ना हो। थोड़ा सा मुझे लगता है कि उतनी डिमांड नहीं है जितनी, मतलब जरूरत है लेकिन डिमांड नहीं है। फर्क देखें, जरूरत है लेकिन इसको इग्नोर करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ जॉब ग्रोथ आफ्टर 5 years, उसमें मुझे लगता है कि अगर आपका बैचलर्स है फिजियोथेरेपी में तो मस्ट है कि आप मास्टर करें, मस्ट नॉट। Related question, doctor. Related question from Georgina Borzo. Hi, can you please shed some light on occupational therapy and what does OT do? ऑक्यूपेशनल थेरेपी का थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे इंडिया में अभी भी उतना वो हुआ नहीं, एक्सप्लोर हुआ नहीं है वो। तो चूंकि अब होता है कि एक्सपर्टीज का ज़माना है, अब आप अगर किसी की कोई तबीयत खराब होती है तो जनरली यू डिडंट गो फॉर MBBS डॉक्टर, नो, इवन समटाइम यू फील दैट यू नो व्हाटएवर द MBBS डॉक्टर इज गोइंग टू प्रिस्क्राइब, यू नो दैट वन। नहीं, आप हमेशा आप एक्सपर्टीज नहीं, आप MS MD भी नहीं, बल्कि आप पर्टिकुलर उस फील्ड में जाते हैं। जैसे आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास, कोई किडनी का प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, है ना। तो उसमें अब इंडिया में इस तरह का अब काफ़ी, अब जैसे आप इंडिया में आप ग्लोकोमा अगर है तो अभी भी मुझे बहुत कम ही डॉक्टर मिलेंगे जिसमें लिखा हो ग्लोकोमा, नहीं, और दूसरी जगह है कि आप वहीं जाएंगे जो ग्लोकोमा का हो, तो यहाँ की अवेलेबिलिटी कम है। ये अब उसमें अवेयरनेस आ रही है, तो उसी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है और उससे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे वो भी एक ऐसा छिपा हुआ कोर्स ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर ज़्यादा करना चाहिए, अगर मौका है तो जरूर करें। Okay, next question, Karim Raza पूछ रहे हैं कि which country is best for master of pharmacy? I am pursuing a B.Pharm and after that I want to go abroad for a master. So which country is best for master of pharmacy? मतलब मास्टर या हायर स्टडीज के लिए एकदम थंब रूल है, एकदम बस एक ही रूल है कि आप दुनिया के किसी कंट्री में जाएं आप, तो आपको ट्यूशन वेव और स्कॉलरशिप का कंसेप्ट नहीं। आप जो देखते हैं लोगों को, वो पैसे वाले लोग जाते हैं, $20,000 $25,000 डॉलर देते हैं, फीस देते हैं, फिर नहीं। सिर्फ और सिर्फ US एक ऐसा कंट्री है जहां आपका किसी वजह से फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं भी हुआ, अगर ट्यूशन वेव नहीं हो पाया तो सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इवन आप वहाँ चेंज भी कर सकते हैं। तो स्ट्रांगली मैं मशवरा दूंगा कि आप स्पेशली जो एवरेज स्टूडेंट हैं, स्पेशली इज डजंट हैव मनी फॉर ट्यूशन फी, तो आप US को देखें। हाँ, अलबत्ता जर्मनी वगैरह में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ट्यूशन वेव करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आप देखेंगे डिग्री, जॉब, फिर आपकी लाइफ स्टाइल, फिर कहीं ना कहीं आपका कल्चर, तो आप ये सारी चीज US में वेरी इजीली विल गेट इट, नो। अब US का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कोई लड़की को अगर जाना है US की किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसका नाम से पता चल जाए शी इज मुस्लिम,
तो आपको ताज्जुब होगा कि उस स्कूल के जो इंटरनेशनल डायरेक्टर होंगे वो उस स्कूल या उस यूनिवर्सिटी के मुस्लिम स्टूडेंट जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है बाकायदा हर स्कूल में है, हर यूनिवर्सिटी वहाँ, उसके बाकायदे जो डायरेक्टर उसको वो कॉल करेंगे कि एक लड़की आ रही है। आपको ताज्जुब होगा तो उस लड़की को रिसीव करने कोई मुस्लिम डॉक्टर कोई जाएंगे, फिर उनको रखा जाएगा एक हफ्ता किसी मुस्लिम लड़की के साथ, फिर उसके बाद उनके फिर रिहाइश का इंतजाम होगा, फिर उसको मतलब किसी इंडियन लड़की के साथ, किसी मुस्लिम लड़की के साथ, यानी इतना ख्याल रखा जाएगा आपका। तो आप मतलब मैं स्ट्रांगली मशवरा दूंगा कि लड़कियां भी जो है वो मास्टर प्रोग्राम यूएस में आप एकदम फुल गार्जियनशिप हो, बल्कि मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत सारे यहाँ जो मॉम डैड है उससे ज्यादा सख्ती वहां मिलेगी गार्जियनशिप। तो आप मैं यूएस को You recommend US, okay? Yeah. So next is Nida Sheikh. She asks, what option will suit with aviation field, because I'm doing an aviation course and I'm interested in paramedical. So what should I choose? तो एविएशन आपका ऑलरेडी चल रहा है नहीं? अभी चल रहा है aviation. So and she's interested in paramedical. So what should she choose? If she wants to do a paramedical from aviation field, then what is the best route? एविएशन से पैरामेडिकल का तो अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर रही हैं वो, तो उसका ताल्लुक पैरामेडिकल से तो शायद मुझे नहीं आंसर नहीं समझ आ रहा। ओके, क्योंकि एविएशन खुद अच्छी फील्ड है, खुद अच्छी फील्ड है, तो उसमें कंप्लीट में इसमें ट्रैक में मतलब ऐसा लगता है ना कि उसमें काफी फीस भी है, अगर वो जहाँ से कर रही हो वो या कर रहे हैं वो उसको शायद। Next question from Sheikh, if we don't get admission in MBBS, then is BDS better or BHMS better? BHMS means Bachelor in Hospital Management, I think, yes. तो मुझे लगता है कि BHMS सही होगा in India. Right. And just generally in terms of homeopathic, what are the opportunities that are there? बेसिकली होता क्या है कि हम लोग यहाँ जो आयुर्वेद या होम्योपैथ है ना, तो दाखला लेने के बाद या बुरा ना माने जैसे हमारे कोई फौकानिया या वस्तानिया में जैसे कोई दाखला लेते हैं तो पहले दिन ही से समझ जाते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं है। Actually BHMS is homeopathy, it's not hospitality बोल रहे हैं। अच्छा तो होम्योपैथ को मैं कह रहा हूँ, तो आप उसमें आप आगे बढ़े, आप होम्योपैथ में आपने बैचलर्स किया, आप जर्मनी में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड लेवल के जहां आप मास्टर करें, आप पीएचडी करें, आप पब्लिश करें पेपर, आप कोई दवा के बारे में कोई नया कोई वो करें। तो मैंने देखा है कि ये सब जो कोर्सेज हैं उसमें लेने के बाद ही उस स्टूडेंट को देखें तो आपको लगेगा they know that oh this is the dull course, this is I don't have very good scope। नहीं आप उसमें ही अच्छा करें आप, और उसमें अच्छा करने का आजकल बहुत सारी एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने होम्योपैथ आप कर रहे हैं या कर लिया है अगर, तो आप कोशिश करें कि मास्टर का या पीएचडी प्रोग्राम का आप शुरू करें। जी। Okay. Next question is the last question from Adiba Tanveer. Sir, please give us an information about studies in abroad and entrance exam for universities. So basically, she wants to know about if they have to go outside of India and do studies in the respective fields, which are the good countries to go to. मैं तो मतलब आपको मतलब यूएस जो है ना कई नुक्ते नजर से, एक ही नहीं, एक तो अगर मतलब मेरा ये है कि अगर जैसे मुंबई या दिल्ली में बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं, तो आप अगर आपको अंडरग्रेड अगर आपको करना है फीस दे करके, तो फिर वहां भी वही मशवरा दूंगा। आप यूएस में होता क्या कि आप 1 या 2 साल के बाद मिनिमम तो कहीं ना कहीं आपका एडजस्टमेंट हो जाता है। होता क्या है कि वहां जब जैसे मैं खुद मेरा जो स्टार्ट हुआ था, मैंने रिसर्च शुरू किया था तो अंडरग्रेड के स्टूडेंट थे। तो होता क्या है कि वहाँ आप जब कोई रिसर्च करते हैं अंडरग्रेड स्टूडेंट के साथ,
तो फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है. बेसिकली यू आर इन्वॉल्विंग अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स, और अंडर ग्रेड के कहीं पे भी दुनिया में बहकने के या इधर से उधर होने के ज्यादा चांस होते हैं. गवर्नमेंट काफी वो करती है, इंकरेज करती है. तो इसलिए जब आप 1 या 2 साल आपके बाद आपको कहीं ना कहीं आपको स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप वो होती कैसे है कि बेसिकली आप उनको लैब में उनकी मदद करते हैं. आप अगेंस्ट दैट ही इज प्रोवाइडिंग सम स्कॉलरशिप, सम असिस्टेंटशिप. तो 2 फायदे हो जाते हैं. वन थिंग दैट यू आर गेटिंग समथिंग monetary, and second thing is adding in your profile because you have been doing any practical thing. तो उसके लिए मैं मशवरा मैं दूंगा कि यूएस में कंप्लीट ऑर्गेनाइज है एजुकेशन सिस्टम. मुस्लिम इवन लड़कियों का भी मैंने देखा कंप्लीट. मतलब आप है ना कि आप मतलब आपको 30-40% आपको तजुब होगा जो स्कूल है उसके अंदर मस्जिद होती है, जहाँ आप अपनी पार्किंग जो है वो मस्जिद के इसमें करेंगे. मकसद उनका ये होता है कि जब कोई आदमी मजहब से जुड़ा होता है, वहाँ का जो कंसेप्ट है, तो यकीनन दूसरी जो खराबी सोशल जो वो होती है, ड्रग है, अल्कोहल है, और जो दूसरी चीज सब है उसके साथ साथ वो नहीं होती है. तो लोग काफी इनकरेज करते हैं. बल्कि वो काफी जो है वो तजुब होगा कि वो फ्राइडे प्रोग्राम में उनके इंटरनेशनल जो डायरेक्टर वो आके बैठते हैं. वो इसी तरह रमजान में आते हैं. वो ओनली टू इनकरेज मुस्लिम स्टूडेंट, ओनली टू गिव मैसेज दैट we are very close to, we take care of you. तो मैं यूएस को काफी वो दूंगा. लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले में भी काफी सुना ऑर्गेनाइज हैं. पैसे के मामले में थोड़ा सा ट्यूशन का थोड़ा सा वहाँ वो है, लेकिन ऑर्गेनाइज काफी यूएस जैसा ऑस्ट्रेलिया में भी है. Okay, so USA and Australia, 2 main countries for medical apart from India. So uske sath I think the questions are over. So wonderful session, doctor. Thank you so much for all of your efforts, and I'm sure all of the participants have benefited a lot from doctor's knowledge. And I wish all of you all the very best with your futures, and Jazakallah khair. And now I would request Dr. Mr. Shahzad to please close the session with the dua. Thank you so much, Fuzail bhai, and thank you so much, Dr. Sufyan, for such an insightful session. It was a great learning for all of us, including me, I would say. So to all the participants, it was fantastic to have you all on board. AMP organizes a session by highly qualified professionals and experts in particular field to share their learnings and viewpoints to guide not only the youths but everyone. So we request you all to keep joining these sessions, which will help you to choose the right career, which will also help you to succeed in your career. We also request you all to share this with your friends and family and ask them to join these sessions as well. We are now going to end this session with a short dua, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwati al-mateen, ya rahim al-masakin, ya arham ar-rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you everyone for joining. Tomorrow again we will have a session on career guidance seminar, same time 3 p.m. Request you all to join as well. Ask your friends and family members to join in these sessions as well. Thank you so much, Dr. Sufyan, once again before we end the session. Pleasure to have you, sir. Okay, Jazakallah khair. Have a great evening. Jazakallah khair, doctor. Very nice to have you again. Inshallah. Okay. Sure. Assalamu alaikum.